أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Now, yesterday I was talking about the approach to the bleeding disorder. I have told you that if there is a bleeding, what is the physiological phenomena in which this bleeding can be stopped, or what are the physiological aspects of this bleeding, what is the normal reaction to the body against this bleeding. If you have already understood the stages of formation of a clot which can stop this bleeding. The first stage was the function of the platelet. The function of the platelets are important. There are two types of the platelet problems. One is the quantitative problems. Means the quantity of the platelets are low enough to cause the bleeding because of the weak platelet clot. The quantitative problems of the platelets are manifold, as well as quantitative are concerned. Qualitative diseases of the platelets are the separate subjects. They are two separate things, as quantitative and qualitative. Now, the first thing is this is a bleeding. The first response is of the bleeding against this is the vessel wall constriction. If there are diseases of the vessel wall, it will cause bleeding. You will see later on what are the causes which can affect this stage. This is step 1. Step 2 is activation of the platelets. The platelets should be activated by a mechanism which is described previously by me, and said that there are a lot of the chemical reactions and enzymes which are involving in this process for the activation. One is through the cyclooxygenase inhibitors, which act on the thromboxane, which inhibit the thromboxane, and thromboxane, if it is inhibited, or the collagenase, if it is inhibited, then definitely this activation cannot proceed on. So cyclooxygenase inhibitor like aspirin. Cyclooxygenase inhibitors are other than there are other cyclooxygenase inhibitors also. For example, other than I said powerful indomethacin, phenylbutazone, they will act on this. We are using aspirin, as a primary or the secondary prevention against the heart disease. Another mechanism of the activation of the platelet through this path, ADP path. ADP path, and these are the drugs which act on this ADP path. The articlopyridine and clopidogrel and the prasugrel and other second generation or third generation drugs. There is possibility of that. It is possible that if they are inhibited, then the ADP cannot form the P2, that is the prostaglandins Y2, and it should activate the platelet. So if you get this or this, it means that you are inhibiting these activation. This is important to understand because these should be asked in the future examinations. The third stage is the aggregation. The activation is done now. Aggregation to the site of the bleeding. There are certain factors like the chemotactic type of factors which are aggregating the platelet to one side and form what is called as the aggregates of the platelets. The platelet aggregation. So there are certain diseases affecting on this. I have already discussed on my previous lecture. Then there are platelets should, after this sequestration stage, the other stage of the platelet is adhesion. They should adhere themselves, forming a clot, forming a lump, a clot, or a sediment, or whatever you call this, and it will form a platelet clot like this. So platelet clot will stop bleeding temporarily.
here the bleeding will stop. This is called the bleeding time. If anything happens in this stage 1, 2, 3, 4, first is the vessel wall, repeat. Second is the activation. Thirdly, the platelet. After this activation, the platelet should be what we call as this one. This is stage adhesion, aggregation, and then adhesion. To form the last stage is to form a clot. So any disease which can interrupt these steps will cause increased bleeding time, not clotting time, bleeding time. But it is a temporary platelet clot, it will stop bleeding, definitely. Now afterwards, the fibrin clot is the solution. The fibrin clot will form by clotting cascades, I said, the intrinsic pathway, the extrinsic pathway. If anything is missing here, it cannot form the fibrin from fibrinogen, and that's why the fibrin clot cannot be formed. And after the fibrin clot, the bleeding definitely should be stopped afterwards. The primary causes of the bleeding for the platelets is concerned. The secondary cause of the bleeding then is due to the non-formation of the fibrin clot. And third point is that this fibrin clot should be resolved in a time by activation of the plasminogen to plasmine or fibrinolysin. That is called the plasmine or fibrinolysin. It will dissolve these fibrin threads because now it is healed. The endothelium is now here healed, and there will be no bleeding afterwards. If you activate this system powerfully, then fibrin clot will be dissolved in due time, and the bleeding starts again. And this is a tertiary bleeding. There is primary bleeding, there will be secondary bleeding, and there are causes of this will cause the third bleeding, and that is the tertiary bleeding. So 4 factors, there are factors which are involved in these processes, whether in the first and the second and the third, they will cause increased bleeding. Simple as that. And I already told you about this case scenario which I have discussed, that the patient has some bleeding in some area of the body, and dominant one, it is a latent one, we cannot, diagnosing it, and gradually the patient becomes anemic, and it is causing the iron deficiency anemia. In the end, I say, and it should be managed, and it should be evaluated properly. It is a common scenario. Now I am actually talking about the bleeding further. I am Professor Ali Haider, visiting professor of the DIMC and DUHS in Dow and JSMU. I am the visiting professor now at the Jinnah Sindh Medical University. Now I should evaluate the patient. If there is something happening relating with any type of the bleeding disorder, history should be taken properly. The bleeding, the duration, history of the what is called as the presently complete with duration. And then we go for the history taking. What type of the bleeding he has, what are the predisposing factors if it is possible. Excuse me. And then we go for the physical examination of the patient. And then the lab evaluation. The history, what is history? Are you a bleeder? Surgical challenges, accidents and injuries, dental extraction, menstrual history, at the time of the circumcision, you were bleeding at the time or not, etc. It should be asked. That is, genetic factors are operative or not. So a history should be properly taken. That said, I am said the history of the presenting illness. Then you go for the what is called as the family history. You go for the personal history,
And a female, you go for the menstrual history, or what we call as the gynecological history. If he's the old person, we go for the geriatric history. If he's a child, go for the milestones of the growth, and the personal history and the socioeconomic history. This will tell you something about the initiator of this bleeding, or predisposing factor of this bleeding. The type of the bleeding you see is excuse me, ecchymosis, a big collection of the blood, petechiae, small pinched out areas, pin-headed areas, epistaxis, nose bleeding, deep soft tissue bleed, the hematoma formation, hematosis inside the bone, in the joint, or this from some part of the GI, right, of some part of the urinary tract. For example, in hematuria, for example, from the respiratory tract, like hemoptysis, etc., etc. The duration, does it sound genetic? Means the duration, bleeding history from the very beginning, from the 1 year of age, 2 year of age. It may be congenital, what is required. So if you take the history, then it can be, you can decide it. Family history, examine the pedigree. The family tree should be made, whether it is the autosomal dominant or autosomal recessive, or X-linked dominant or X-linked recessive. Medical history, there is any history of the liver disease, or any history of the renal disease, any history of malignancy, and the history of the antibiotic therapy, any history of the poor nutrition, and any history of the malabsorption. Something like this should be asked in the medical history. Physical of the examination concerned, current hemorrhage, nature and extent of it, how much hemorrhage is occurred. And remember, the hemorrhage you see is a part of the internal bleeding. So the internal bleeding probably is more than the external site you have just examined. मैंने कहने का मकसद ये था, किसी को अगर हेमाप्टिसिस हुआ है या हेमाटोमिसिस हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा है, मगर जो अंदर है हुआ है वो अभी नज़र नहीं आ रहा वो आपको, तो पेशेंट जो है आपके सामने के सामने कोलैप्स हो जाएगा. आप तो बोल देंगे एक यानी हाफ कप भी नहीं आया यार, लेकिन पेशेंट जो है ना वो मारा गया. इस तरह से जो हुआ था वो डेंगू फीवर में हुआ था कि उसको क्या हुई, सीवियर एपिस्टैक्सिस हुआ था. पेशेंट को एपिस्टैक्सिस हुआ, उन्होंने नोजल बैंडेज कर दी कि भाई ये गड़बड़ वाली बात है, और प्लेटलेट आया उसके 15,000. असल में ब्लीडिंग हो रही थी, पीछे गिर रही थी, फिर वो भरती गई पीछे जाती रही, स्टमक में फिल हो गई, फिर उसे हेमाटोमेसिस हो गया और उसकी डेथ हो गई पेशेंट की, क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग इतनी सीवियर थी कि वो हेमरेजिक जो है हाइपोवोलिक शॉक में चला गया. Sorry. Intercurrent illnesses, I say that, like liver disease can cause, because liver is a part where the coagulation factors, the clotting factors are formed. Whether it is a petechial type of hemorrhages or ecchymosis. Trivial trauma can cause the petechiae or ecchymosis. And diagnosis when guided by the history. Do not go by here and there to car. आपको जो जस्टिफाई करना पड़ेगा. अगर आपने गलत कर दिया जस्टिफाई, तो एग्जामिनेशन में वो फेल कर देगा. आपने कहा CBC है, वो बिल्कुल मान लेगा, ठीक बात है, क्योंकि आप प्लेटलेट काउंट देखना चाहते हैं शायद, ये ठीक बात. आप एनीमिया देखना चाहते हैं, ठीक बात. फिर आप स्पेसिफिक टेस्ट कराना चाहते हैं आगे जाने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पहले बताया था कि MCV अगर कम आ रहा था तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए वर्कआउट करना चाहिए था, और अगर MCV जो था उसका ज़्यादा आ रहा था तो आपको विटामिन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी के लिए जाना चाहिए था. फिर आप कराते हैं कि प्रोथामिन टाइम, जो कि एक्सटेंसिव पाथवे के लिए INR के साथ कराते हैं, फिर APTT कराते हैं. लेकिन मैं इसमें बोलूँगा कि इसको नहीं कराना चाहिए, पहले ब्लीडिंग टाइम देखना चाहिए इसका, तो कोई नहीं करता.
और क्लॉटिंग टाइम भी देखना चाहिए, जो कोई नहीं करता। अगर आप लिख के लैब को दे देंगे तो ये दोनों चीज़ें निकाल के दे देंगे, तो ये तो इंटरमीडिएट पार्ट है ना। हमें तो ब्लीडिंग टाइम चाहिए, जो हमें नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो तो पता है, हमें नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम भी पता है। ब्लीडिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है और क्लॉटिंग टाइम 8 to 10 मिनट्स होता है। ये बड़ा अहम हो जाती है बात, कोई इसको नहीं करता। आपको खुद ही एग्जामिन करना पड़ता है। पेशेंट बेड साइड पर आपको ब्लीडिंग टाइम निकालना पड़ता है और बेड साइड पर क्लॉटिंग टाइम निकालना पड़ता है। ये लैब वाले आपको पीटी बताते हैं, जिससे इंट्रिंसिक बात भी पता चलती है, जो विटामिन के डिपेंडेंट होती है। और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है, ये पीटीटी और भी होते हैं इसके अलावा, इससे रिलेटेड टेस्ट भी, तो वो भी जो है ना कराने की ज़रूरत है तो कराएं आप, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्लेटलेट काउंट हो गया था, फाइब्रोनोजिन, सीरम फाइब्रोनोजिन के लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बाज़ दफ़ा। और थ्रोम्बिन टाइम यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी आप इसका मतलब है कि आप जो है ना फाइब्रिन क्लॉट का टाइम कितना ले रहा है टोटल, वो जो है ना वो भी निकालते हैं इसको। बाज़ जगह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इंक्रीज फिब्रिनोलिसिस होगी वहाँ थ्रोम्बिन टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको अगर आप देखें ना, अलग अलग अगर मैं शुरू हो जाऊंगा तो इसमें और इसमें और इसको बताते बताते ही मैं मतलब ये कि खा जाऊंगा, लॉट ऑफ टाइम विल बी टेकन बाय मी। अब लोग कहते हैं कि लेक्चर बड़े लंबे लंबे देते हैं आप। मैं भाई लेक्चर लंबे देने का मकसद है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फ़ायदा तो उनको है कि जिनकी जो है ना, आपने अपनी फिजियोलॉजी को और एनाटॉमी को और बायोकेमिस्ट्री को अगर अच्छा रखते या फार्माकोलॉजी को अच्छा रखते तो आज इतना लंबा चौड़ा तकरीरें मैं ना कर रहा होता, क्योंकि वो लोगों को याद ही नहीं होती है, भूल जाते हैं। अब इसके बाद जो है ना, ये तो आपने टेस्ट कराने थे, लेकिन आगे जो जाएंगे तो आपको मिक्स स्टडीज़ करानी होंगी स्पेसिफिक के लिए, कि पेशेंट का और आप ले लेंगे और फिक्स जो होता है, जो स्टैंडर्ड जो होता है नॉर्मल, उसको ले लेंगे, दोनों को सलाइन लेके उसका सीरम लेके दोनों को आप मिक्स करेंगे। तो वो देखेंगे कि आया पेशेंट और उसके दरमियान उसको देने से कोई फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा होता है, ये कहती है मिक्सिंग स्टडीज़, इसको इंक्यूबेट करते हैं 2 आवर्स के लिए और क्लॉटिंग ऐसे करते हैं एज यूजुअल। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी मिक्सिंग स्टडीज़ जो है ना, उससे पता चल जाता है कि वो चीज़ें जो कि दूसरी जगह नहीं पकड़ी गई थी, कुछ ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर करेक्ट हो जाता है ये, तो कोई फैक्टर डेफिशिएंसी है। ये अगर पेशेंट का मिक्सिंग स्टडी आपने किया था, मिक्स किया था पेशेंट को और जो है नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पर्सन के सीरम क्लॉट के बाद जो यूज होता है वो सीरम कहलाता है। तो सीरम के साथ जब आपने इसको मिक्स स्टडी के लिए किया था तो बराबर था वो। अगर वो फर्ज करिए कि इसको देने से ये ज़्यादा आ गया, फिर भी आपके देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो करेक्ट हो जाता है फैक्टर। इसका मतलब है कि करेक्ट हो जाए, ये अगर अब नॉर्मल हो और ये करेक्ट हो जाए तो फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अनकरेक्ट हो तो या तो सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट है या कोई और ऑटो इम्यून सिस्टम है जो ऑपरेट हो रहा है और ब्लीडिंग करवा रहा है। देखिए ये पार्ट जो लिखा गया ना, ये बहुत ही अहम है। अगर कोई आदमी सही तरह समझना चाहता है सब्जेक्ट को तो उसको समझ ले बात को। तो मिक्सिंग स्टडीज़ आप लिखेंगे तो वो करेगा ना, और वो ये कहेगा करेक्ट होता है या अनकरेक्ट होता है, ये भी लिख के ब्रैकेट में दे दें उसको, ताकि आप इसको इस पर काम करना चाहेंगे तो अलग हो जाएगा, इस पर काम करना चाहेंगे तो अलग हो जाएगा। अब ये दो में डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट के लिए जो टेस्ट है लिपिड एंटीकोगुलेंट है, या जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के लिए जाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। उनकी एंटीबॉडीज देखनी होती हैं, या टैक्ला जिसे कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी या लिपिड एंटीकोगुलेंट। ये रेयरली एसोसिएटेड ब्लीडिंग होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है खास तो सॉरी, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें पेशेंट को अर्ली जो है ना वो मिसकैरेज होता है, उनमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे टेंड टू थ्रोम्बोस। लेकिन इसका जो लुभाव है वो ये है कि वो थ्रोम्बोटिक इवेंट को ज़्यादा करते हैं ब्लीडिंग से। एक्वायर्ड फैक्टर इनहिबिटर्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर फैक्टर 8
सबसे कॉमन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, वो कॉमन है। एक्वायर्ड हीमोफीलिया जिसे आप कहते हैं, मोस्ट कॉमन फैक्टर 8 मोस्ट कॉमन। एक आदमी को फैक्टर 8 लगाए जाएंगे, आप लगाए जाएंगे, तो उसके बाद उसने क्या किया कि इसके डेवलप कर दिया अगेंस्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, तो अब फैक्टर 8 लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हेमोफिलिक के अंदर अब फायदा कोई नहीं हुआ, अब एक्वायर्ड हो गया, वो जेनेटिक तो था ही था। फिर टर्शरी केयर रेफरल चाहिए इसको, पेशेंट को, और मज़ीद मालूमात करने के लिए आपको जो है ना टर्शरी केयर में वो भी जगह जहाँ हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो फैक्टर डिफिशिएंसी में हीमोफीलिया ए है, बी है, फैक्टर 8 या 9 एसेस करा के देखते हैं अलग अलग करके। प्रोबेबली माइल्ड रहती है अनलेस ब्लीडिंग प्रेशर इन्फेंट मेल, एक्स लाइक ये होता है लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये मेल में होता है, फीमेल में कैरियर होता है। लेकिन अगर दोनों साइड से आ जाएगा तो ये बीट कर सकता है। लेकिन फैक्टर 9 डिफिशिएंसी जो क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं आप, उसको जो है ना उसके अंदर वो फीमेल भी इन्वॉल्व हो सकती है, इज पॉसिबल। तो ये सेंटर अलग है, हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है, उनको सेंड कर दिया जाता है कि भाई ये फैक्टर डेफिशिएंट हो गया है, अब आप इसको मैनेज कीजिए। फिर वॉन विलिब्रांस डिजीज़ है, ये वॉन विलिब्रांस डिजीज़ जो है VW डिजीज़, याद करेंगे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिजीज़ है ये फैक्टर जो प्लेटलेट जो है क्या होते हैं कि जब एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेशन जब उनका एग्रीगेट करते हैं आप इसको रोटेशन करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, तो वहाँ ये डिजीज़ होती हैं। ये बाउन सोलर डिजीज़ है, वॉन विलिब्रांस डिजीज़ है, ये वो डिजीज़ है। शुरू में मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ब्लीडिंग टाइम जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्लॉटिंग टाइम सही रहेगा इसका। तो क्लॉटिंग का इफेक्ट नहीं होता इसका, क्लॉटिंग टाइम पे इसके अंदर APTT भी सही होता है और PT-INR भी सही होता है। मज़ेदार बात यह है कि फिर भी जो है ना वो ब्लीड कर रहा होता है, तो फिर तो किसका मतलब है आपको निकालना चाहिए था ना ब्लीडिंग टाइम, तो वहाँ से फिर आपको क्लू मिलता। तो वॉन विलिब्रांस डिजीज़ के अंदर ब्लीडिंग टाइम भी होता है वो एबनॉर्मल होता है। इसके अंदर जो होता है, जो फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, इसमें क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। ये इसको अगर आप सिरे को पकड़ लें, हाथी के या तो दुम पकड़ें या सर पकड़ें, सर आप पकड़ नहीं सकते, दुम पकड़ लेंगे तो ये निकल आएगा मसला, वरना फिर इधर इधर घूमते रहेंगे और ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। हीमोफीलिया की 3 टाइप होती हैं। एक कॉमन टाइप है जो आपकी दुनिया में होती है, और ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मैंने आपसे कहा। और ये मेल जो है ब्लीडर होते हैं और फीमेल जो होती हैं कैरियर होती हैं। हीमोफीलिया बी जो है ये हीमोफीलिया है एक्चुअली। बी जो है क्रिसमस डिजीज़ है, यू डोंट नो हैव एनफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, 8 डेफिशिएंसी थी, 9 डेफिशिएंसी थी। और सी ये है कि इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो फैक्टर 11 है। फैक्टर 11 अगर डेफिशिएंट बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन वो भी हीमोफीलिया है, वो सी फैक्टर, इसको 11 कहते हैं, फैक्टर 2 भी कहते हैं इसको कुछ लोग, यानी फैक्टर 11 एक्चुअली दिस इज डेफिशिएंसी, और ये बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन हीमोफीलिया ए जिसको हीमोफीलिया क्लासिकल हीमोफीलिया बी क्रिसमस डिजीज फैक्टर 9 एंड फैक्टर 11 डेफिशिएंसी जो होती है वो हीमोफीलिया सी कहलाती है। और इसके अंदर जो है वो ये डिफरेंट टाइप पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग बचपन से हो, मार्क लग गया, सर्कमसिजन जो था वो जब किया तो ब्लीडर हो गया, उसको जो है नेजल ब्लीडिंग अक्सर हो जाती है, उसको पेटिटियस हेमरेजेस एकाइमोसिस हो जाते हैं, एब्डोमेन के अंदर जो है उसके ब्रूसेस हो जाते हैं, और इसी तरीके से ट्रिवियल ट्रॉमा से उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। हीमार्थोसिस उसको हो जाता है, हेमोचूरिया उसको हो जाता है, ब्लड आ जाता है स्टूल में, हेमोटोकेजिया वगैरह इस तरह की प्रेजेंट करते हैं। ये बचपन से ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं हेमोफीलिया। ये एवोल्यूशन हेमोफीलिया है कि इसके ट्रीटमेंट पहले करते थे वो होल ब्लड से करते थे, फिर इसमें क्या किया उन्होंने कि फॉस्फेट प्लाज्मा या क्रायोप्रेटेट का काम शुरू हुआ। इसने बहुत फ़ायदा किया है 1950-60 के दरमियान। फिर प्लाज्मा ड्राइव फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट स्पेसिफिक फैक्टर्स इन्होंने देने शुरू किए, ये 1970s में। पाकिस्तान में ये तो उस वक्त भी नहीं आया था, हमारे पास आया ये 5 साल बाद 75-77 में। फिर इनके बाद इसके अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्होंने क्लोनिंग के से ये फैक्टर 8 डेरिवेटिव बनाने शुरू किए।
ये याद रखिएगा, माइल्ड अगर कोई ब्लीडर है हीमोफीलिया का तो वो DDVP से, क्योंकि इसके अंदर को फैक्टर इसके अंदर होता है जो वन विली बॉर्न फैक्टर के साथ एसोसिएट होता है, वो फैक्टर 8 के साथ जो है ना वो वर्क करता है। तो उसके अंदर अगर माइल्ड है तो आप DDVP जो नेजल आता है स्प्रे उसको इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसमें कर लीजिए उसको। लेकिन सीवियर ब्लीडिंग है तो फिर आपको स्पेसिफिक फैक्टर, सिंथेटिक फैक्टर जैसे कहते हैं, वो अपेयर हुए। फिर उन्होंने स्पेसिफिक तरीन लेके आ गए, फर्स्ट जनरेशन और फिर सेकेंड जनरेशन और फिर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। यहाँ इनको ये जब भी ब्लीडिंग होती है वो ये फैक्टर आप लगा देते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि 1990 में 2000 तक ये काम कर रहा था, इवन फोर्थ जनरेशन 2015 के बाद आ गया। और इसके अंदर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम थे, ये लॉन्ग एक्टिंग था वगैरह वगैरह, और ये खुद भी इंजेक्ट कर सकता था पेशेंट, सेल्फ इंजेक्टर होते हैं, जैसे पेन इंजेक्टर नहीं होता, इस टाइप की चीज़ होती है। लेकिन अगर माइल्ड ब्लीडर है तो मैंने आपसे पहले भी कहा आपको कि आप एड्रेनालिन, वाज़ोप्रेसिन जो ABP है, उसका DDVP जिसे आप कहते हैं, उसका इन्हेलर भी मिलता है, उसको इस्तेमाल कर लें तो वो इन्हांस कर देगा फैक्टर 8 को वेरिबुलान को फैक्टर के साथ। इस तरह ब्लीडिंग जो है वो कुछ कम हो जाएगी। लेकिन ट्रीटमेंट असल में देना होता है आपने, या ये देना होता है या इनमें से कोई जनरेशन में से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो देनी होती है। अब वो जो है जीन थेरेपी पर आ गए। अब इस सन में 2020 के बाद से यहाँ पे ये काम करें कि जीन थेरेपी अगर कर दें तो ये क्योर हो सकती है डिजीज़, क्योरेबल डिजीज़ हो सकती है। दे आर वर्किंग ऑन इट। अभी 100% जो है ना ये इसके बारे में नहीं कह सकते आप, इसकी स्टडीज मुकम्मल नहीं है। तो उसके बाद वॉन विली बॉर्न डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 3 जो होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है या इक्वायर्ड होती है। पेशेंट ranges from the asymptomatic या spontaneous bleeding similar to severe hemophilia, बिल्कुल ऐसे ही ब्लीड करता है। इसमें ब्लीडिंग टाइम जो होता है नॉर्मल होता है, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होता है, कैरेक्टराइज बाय द म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग। इसमें जो है ना APTT फैक्टर 8 एक्टिविटी को टेस्ट करें, वन विली बॉर्न फैक्टर, ये आएगा अब नॉर्मल, और रेस्टोसिटिन को फैक्टर को, ताकि आप इसको डिस्क्राइब कर सकें दूसरे डिजीज़ के साथ, जिसको मैंने आपको नाम दिए हैं बर्नर सोलर सिंड्रोम वगैरह वगैरह। उसको हटाने के लिए रेसोसिटिन को फैक्टर के साथ स्टडी किया जाता है। अदरवाइज़ ये कि जो है ना वो माइल्ड है, मॉडरेट और सीवियर है ये डिजीज़, अगर आप सिविरिटी के लिहाज से देखें तो वॉन विली बॉर्न फैक्टर मल्टीमर्स जो है वो जो होते हैं उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वॉन विली बॉर्न फैक्टर के, ये देखिए सीक्रेट होता है एंडोथेलियल सेल से। प्लेटलेट ये फैक्टर जो है प्लेटलेट के फैक्टर है, तो ये मेगाकैरियोसाइट्स या तो सीक्रेट करते हैं या फिर एंडोथेलियल सेल सीक्रेट करते हैं इसको। टाइप 1 में ये है कि नॉर्मल मॉलिक्यूल नॉर्मली लो क्वांटिटीज में होता है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इसके अंदर माइल्ड ब्लीडिंग होती है। टाइप 2 में एब्नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है ये, और एब्नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमर्स विद डिक्रीज इन द लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म्स होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीड करता है। और टाइप 3 जो सीवियर ब्लीडर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। इसमें जो है ना वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर क्वालिटेटिव प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। टाइप 2 के अंदर जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 3 में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम भी है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम भी है, दोनों प्रॉब्लम है वॉली बॉर्न डिजीज़ में। ट्रीटमेंट आप ये है कि मैंने कहा आपको DDAVP अगर माइल्ड है तो आप लगा दें नेजल स्प्रे, या आप इसको दे सकते हैं इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, भी दे सकते हैं, और ख़ुद सेल्फ इंजेक्ट भी कर सकते हैं, सेल्फ जो है ना इन्हेलर भी हो सकता है। फैक्टर 8 ये प्रोडक्ट कंटेनिंग भी वाले भी मिलते हैं, इसके साथ मिलते हैं जो ह्यूमिनेट P और क्विनोड HP, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर फैक्टर 8 चूँकि इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसके रीजन के लिए, इसलिए इसके अंदर अगर आप ये भी डाल दें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे भी नहीं होता, अगर सीवियर हो तो क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। इफ़ अगर वल्नरेबल फैक्टर और फैक्टर 8 प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल नहीं होती
तो फिर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप मॉडरेट ब्लीडिंग में या सीवियर ब्लीडिंग में आपको ये लगाना पड़ेगा क्रायोप्रेसिपिटेट। और इससे भी अगर ये आप नहीं रुकती है या ये भी आप नहीं कर सकते, इसके बाद भी हो रही है, तो फिर जो है ना अमाइनो एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रिक एसिड डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो है ना ट्रांसजेनिक एसिड जिसे कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजेनिटल डिफेक्ट दूसरे जो होते हैं, अदर फैक्टर डिफिशेंसीज भी होती हैं। प्लेटलेट डिफेक्ट्स रेयर होते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके ब्लीडिंग टाइम मैंने आपसे कहा था इम्पोर्टेंट, वहाँ पे वो देखते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने से पता चलता है। वो फिर इन्हांस करते हैं और ये मालूम चलाते हैं कि एडेशन में डिफेक्ट है, एग्रीगेशन में डिफेक्ट है, एक्टिवेशन में डिफेक्ट है, ये मालूम चला लेते हैं। अगर इसके अलावा अगर कुछ हो सकता था तो विटामिन के डिफिशिएंसी हो सकती थी पेशेंट को। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के मसला आ रहा है लिवर डिजीज़ के साथ, उसमें पीटी या एपीटीटी एबनॉर्मल होगा, और उसके अंदर एक कॉमनेस्ट डिजीज है डीआईसी, जिसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। लिवर डिजीज में डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर्स है, सिंथेसिस ऑफ द एबनॉर्मल फैक्टर्स है, इसमें इंक्रीज फिब्रिलोसिस भी होती है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता है। 4 फैक्टर की वजह से लिवर डिजीज कॉज करती है ब्लीडिंग। इसीलिए जो है ना इसमें फ्रेश प्लाज्मा आप देते हैं, विटामिन के आप इसको देते हैं, लेकिन वो फैक्टर जो है ना पीटी को प्रोथर्मिन टाइम को नहीं करता फ्रेश प्लाज्मा, क्योंकि ये विटामिन के डिपेंडेंट है, तो विटामिन के भी लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप क्रायोप्रेसिपिटेट लगाएंगे तो फिब्रिनोजन देगा, वो उससे करेक्ट हो जाता है। या प्लेटलेट अगर कम हो गए तो बिकॉज ऑफ द हाइपरस्टेनिज्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, तो आपको प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ेंगे अगर 20,000 से कम हो जाए तो। इस तरह से इसको करेक्ट करते हैं। दिस इज सेशन 2। ऑल्दो आई हैव टेकन वेरी क्विकली, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई ओल्ड डिस्कशन। इसको मैं एलोबोरेट करके बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके इसके जो चुनिंदा जो की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि हम एवोलेट कैसे करते हैं ब्लीडर्स को। वमा अलैना इल्लल बलाग।